A very good morning to my dear students. As we have started the chapter number 2, the role of government in health, that we have started. So today we are going to continue the topic related to the public health services. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ हेल्थ. It's not about the physical health, but it's about the mental health also. Surroundings हमारी कैसी होनी चाहिए. Then we also studied two case study. One is of Hakim Sheikh and the another is of the two voice की conversation की अमन and रंजन की. ठीक है? And after studying all these things जो हमने अभी तक पढ़े हैं, we can divided our health facilities into two major divisions. उसको two divisions में इसको बांट सकते हैं. One is the public health, other is the private health. Okay, जो public health services हैं, these are run by the government. These are meant for the welfare of the people, and these are run by the government. And when we talk about the private health services, these services are organized either by an individual or a company. अब आज के प्रेजेंट टाइम में we found so many private hospitals, clinics हैं, hospitals हैं, है ना? और we also prefer to go to the private hospitals as compared to the public. पर we prefer to go in the public hospitals क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो हमें जो दिए एक तरह से they meant only not only for the poor people, they meant for all. Anyone can avail the facility of public health system. So today we are going to continue with the public health services कि जो health services हमें government provide करती है. Today we are going to deal with them. जहाँ भी बेटा public word आता है, where we use the word public, it means that deals with the government. ठीक है, that is meant for all the people, सभी के लिए बना हुआ है. और इनको जो भी services को कौन run करता है, these services are run by the government. ठीक है, तो इसमें कोई प्राइवेट इंटरफेरेंस नहीं होती. गवर्नमेंट ही इसमें पैसा लगाती है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. तो दीज सर्विसेज टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें सिर्फ इतना ही पता लगा है कि जो ये हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटीज है, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज पब्लिक हेल्थ, अदर इज प्राइवेट हेल्थ. तो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द पब्लिक हेल्थ सर्विस that are run by the government, जो हमें गवर्नमेंट चला के देती है, गवर्नमेंट रन करती है हॉस्पिटल. So as I already told you, today we are going to continue with the topic of public health services. Okay, now public health services, as I already told you, the public health services है, it is a chain of health centers and hospitals run by the government. मतलब जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे हेल्थ सेंटर्स चलाती है, हॉस्पिटल्स चलाती है, दैट कम्स अंडर द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बिकॉज दे कवर बोथ द एरियाज, रूरल एज वेल एज द अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज में क्या होगा? व्हेन वी टॉक अबाउट द विलेजेस वी आर हैविंग हेल्थ सेंटर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज वी आर हैविंग द हॉस्पिटल्स. तो हर एक विलेज लेवल पे there are health centers. At every village level we are having health centers, and in these health centers we are having doctor, a nurse and a village health worker, and these people are also trained. अब जो ये nurse है या ये जो health worker है, these people are also trained. And who gives them the training? They work under the supervision of doctors at the primary health center. अब जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें अंदर जो भी डॉक्टर्स होंगे उनकी सुपरविजन में ये काम करते हैं. Who are doing work under the supervision of the doctor? Nurse and village health worker. जो village health workers हैं और जो nurse हैं, they are trained, they are dealing with the common illness and they work under the supervision of the doctor. डॉक्टर की सुपरविजन में. ये नहीं कि डॉक्टर नहीं है तो they are prescribing the medicines and they are treating the people, but there should be someone who keep a check on their working. ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन वहां पे बीमार आता है तो डॉक्टर जो भी उनको प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन जो टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, तो वो उसमें उसकी हेल्प करते हैं. So in this chapter, as we have already done one abbreviation, OPD. पहले हमने OPD की abbreviation की थी, that is outpatient department. Today we have learned one more abbreviation, that is PHD.
PHC, दैट मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स किस लेवल पे होते हैं? विलेज लेवल पे, ठीक है। एंड इन दिस विलेज लेवल वी आर हैविंग डॉक्टर्स, नर्स एंड विलेज वर्कर, विलेज हेल्थ वर्कर, ओके। अब जो ये विलेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनके ऊपर भी चेक रखा जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी डन इन 6th क्लास, जब हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन वी टॉक अबाउट द पंचायती राज सिस्टम। तो जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट विलेजेस, ब्लॉक समिति, देन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन विलेजेस के ऊपर जो ये पंचायत, ये जो हेल्थ सेंटर है, इनको भी कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दैट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी वर्किंग को कौन देखता है? दैट इज सुपरवाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। ये हमने पढ़ा विलेजेस के लेवल पे, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एट द विलेज लेवल, की विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स है, हेल्थ सेंटर्स के अंदर विलेजेस आते हैं और उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं। पर इनके ऊपर भी चेक रखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, एंड हु इज गोइंग टू सुपरवाइज देम? दैट इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। नाउ जैसे अब अगर हम करें तो हमारा जो फगवाड़ा है, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट, जो हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, दैट इज इन कपूरथला। नाउ when we talk about the large cities, जब हम बड़े-बड़े cities की बात करते हैं, we have many government hospitals। अगर आप फगवाड़ा की बात लो, we are having civil hospital, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है। तो जो हमने अमन के केस में पढ़ा था, कि जो अमन के केस में भी उसके फादर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए थे, इवन इन द केस ऑफ हाकिम शेख, हाकिम शेख के केस में भी, तो जो उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, they took them him to the government specialized hospital, but due to some reason he didn't get the admission। वहां पे उसको नहीं रखा गया, वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्पेशली दूसरे हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे। बट इन रियलिटी अगर हम अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर्स भी उतने ही क्वालिफाइड होते हैं, उतने ही ट्रेंड होते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट ओन्स, ठीक है। सो जो लार्ज सिटीज हैं, दे हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, और उनमें स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, जहां पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे हार्ट डिजीजेस, ठीक है, ब्रेन के साथ न्यूरो डिजीजेस को लेके, तो उनके लिए भी स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम पब्लिक, मैंने आपको पहले ही बात की गई है कि किसी भी हेल्थ सर्विस को हम पब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट हेल्थ सर्विस इज मेंट टू सर्व ऑल द सिटीजन। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज है, दैट आर ओनली मेंट फॉर द पुअर पीपल। वो पुअर पीपल के लिए नहीं बनी हुई, दैट इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी सर्विसेज अवेल करते हैं। And in the present time, we prefer to go to the private hospitals as compared to the public hospitals. Public hospitals, ठीक है? So time to time जो government है, they establish these hospitals, वो public hospitals को भी establish करती है, health care centers को establish करती है। But अब सबसे बड़ी बात आती है, how to run these services। इन सर्विसेज को कैसे रन करना है, हाउ टू मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, रिसोर्सेज, मैन पावर, इन सबको कैसे लेकर आना है, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द गवर्नमेंट हैज द मनी। लास्ट टाइम हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस करती है। विलेज लेवल पे पंचायत के अलग फंक्शन है, सिटी लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी के फंक्शंस हैं, बट टू डू ऑल दोस फंक्शंस दे नीड फंड्स। तो गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलती है? द टैक्स वी पे, जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट हर बार हमसे टैक्स ले लेती है, कई बार हमारे घरों में बात होती है, बिकॉज मैनी ऑफ योर पेरेंट्स आर आल्सो गिविंग द इनकम टैक्स। तो वो पैसा कहाँ खर्च होता है? उसमें से जो भी इनकम जनरेट होती है टू द गवर्नमेंट, तो सम पार्ट ऑफ दैट इनकम इज आल्सो स्पेंड ऑन द वेलफेयर फंक्शंस। हॉस्पिटल्स को मेंटेन किया जाता है, स्टाफ को सैलरीज दी जाती है, हॉस्पिटल्स में न्यू इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं।
So the money that we pay in term of taxes that is used to run these services, चाहे वो health centers हैं, चाहे वो government hospitals हैं, उन सभी को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो हम जो टैक्स की फॉर्म में देते हैं, that the government used. अब हम पब्लिक सर्विसेज की, हेल्थ सर्विसेज की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है that is meant to provide quality health. क्वालिटी मतलब अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, आइदर फ्री या तो टोटली फ्री हो और एट अ वेरी लो कॉस्ट. आप कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखना, जहाँ पे स्लिप होती है रिसेप्शन पे, अगर आप स्लिप वगैरह कटवाओ तो इट्स हार्डली, मेरे को लगता है 10 रुपीज या 20 रुपीज तक के चार्जेस होते हैं. बट व्हेन यू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो मेरे को लगता है वहाँ पे रिसेप्शन पे दे चार्ज यू 200 और 300 फॉर अ विजिट. ठीक है. सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर मेंट टू गिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द पीपल, आइदर फ्री या तो बिल्कुल फ्री होंगी या फिर एट अ वेरी लो कॉस्ट, जो हर कोई अफोर्ड कर सके. ठीक है, स्पेशली द पुअर पीपल. नेक्स्ट, अब जो ये पब्लिक सर्विसेज हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, दे आल्सो टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. आपने टाइम टू टाइम देखा होगा, गवर्नमेंट कैंप्स लगाती है, कैंपेन्स लगाती है, टाइम टू टाइम हमारे घरों में भी आती है, नेबरहुड में आती है. दे टेक द स्टेप टू कंट्रोल की जो ये मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलरा है, चिकनगुनिया है, ये स्प्रेड ना हो. अभी लेटेस्ट कोविड-19, तो आपने देखा होगा फॉगिंग करने के लिए आते हैं, स्प्रे करने के लिए आते हैं, और जब डेंगू का स्प्रेड होता है ये टाइम टू टाइम कम टू योर होम टू चेक कि कहीं पे वाटर स्टैग्नेट तो नहीं हो रखा. ठीक है, कहीं वाटर कूलर्स में तो नहीं पानी भर के रखा हुआ. दैट गिव्स द प्लेस टू ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज. सो दे चेक ईच एंड एवरीथिंग. तो ये सारे एक्शंस कौन लेता है? दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज. So they take actions to prevent the spread of diseases. Maybe you can recall the function of municipal corporation. आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक फंक्शन पढ़ा था. So can anybody tell me related to that कि क्या फंक्शन था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का? Just raise hand if you can recall. Yes, मान्या. बोलिए मान्या. To prevent the spread of diseases. Yes, जो गवर्नमेंट है that also ensure the prevention of diseases, that diseases do not break out. तो टाइम टू टाइम एक्शन लेना. तो एक्शन कैसे होगा? लोगों को कैंपेन करना, अवेयरनेस लेके आना, एंड दिस themselves come to our houses to check that. ठीक है, तो this work is done by the government health services. Now अब विदाउट द पीपल पार्टिसिपेशन ये ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता. सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज दीज कैंपेन्स एंड दीज कैंप्स विद द हेल्प ऑफ पीपल. कई बार जो लोग होते हैं वो भी कैंप्स वगैरह लगा देते हैं कि हमने यहाँ पे आई चेकअप कैंप लगाया है, या कोई यहाँ पे फ्री, आप यहाँ पे कोई भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो. सो समटाइम देयर आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दे आल्सो जॉइन देयर हैंड्स विद गवर्नमेंट एंड दे हेल्प दीज कैंप्स एंड कैंपेन्स. अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, दे नीड मनी टू रन. सो फ्रॉम वेयर डू दे गेट द मनी? दे गेट द मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वी पे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? जो हमारे दिमाग में क्वेश्चनिंग आती है, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करें? व्हाई डू वी पे टैक्स? बिकॉज जो गवर्नमेंट है that use those taxes in providing public services, जो हमारे बेनिफिट में है, जो हम कई सर्विसेज ऐसे हैं जो हम अपने आप से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लाइक पुलिस, डिफेंस, हाईवे, जुडिशियल सिस्टम, इनको आप अपने आप से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. तो देयर इज गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज दी. अगर आपने देखा होगा कितनी हाईवे की कनेक्टिविटी हो गई है, एक्सप्रेस वेज बन गई हैं, जो जर्नी को 8 आवर्स लगते थे, नाउ यू कैन कवर दैट जर्नी विद इन 5 आवर्स और 6 आवर्स में कर लेते हो. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, डिफेंस की फैसिलिटीज हैं, नए नए आपके जो इक्विपमेंट्स आते हैं, मिसाइल्स आती हैं. तो ऑल दीज जो मनी है दैट इज स्पेंट फॉर दीज पर्पसेस, and some part of these taxes also spent on developmental programs, education, healthcare, employment, social welfare, vocational training. अब ये vocational training क्या है?
वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स स्किल इन योर हैंड। अगर किसी ने मतलब आगे परस्यू नहीं करना, आगे नहीं अपने एजुकेशन लेनी, तो वोकेशनल सेंटर्स हैं। आप स्टिचिंग सीख सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते कोर्स कर सकते हो, कारपेंटरी का कोर्स कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर सकते हो, डाटा ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हो। तो इट मीन्स प्रोवाइडिंग स्किल्स इन योर हैंड। आपके हाथ में एक स्किल आ जाता है, फॉर दैट यू कैन अर्न समथिंग। तो गवर्नमेंट जो है दैट इंश्योर्स कि टाइम टू टाइम जो उसका जो टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है दैट इज आल्सो स्पेंड ऑन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। एजुकेशन, अब हम बात करते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट वंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स। सर्व शिक्षा अभियान, अभी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील प्रोग्राम। तो वो सारा पैसा कौन खर्च कर रहा है? गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहाँ से आया? द टैक्सेस वी पे। Fine. Then government also use this tax money in providing relief and rehabilitation in case of natural disaster. अगर आपने लेटेस्ट जैसे हम पढ़ते होते हैं जो चमोली वगैरह एरियाज हैं, कभी क्लाउड बर्स्टिंग हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो उन लोगों को हेल्प देना, उनको नई जगह पे ले जाकर उनके घर बनवाना, दैट वर्क इज ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद जो स्पेस जो हम पढ़ते हैं, मंगलयान, वी टॉक अबाउट चंद्रयान, वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, मिसाइल्स के बारे में, तो दैट आर आल्सो फंडेड बाय दीज रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू मतलब द इनकम जनरेटेड थ्रू टैक्सेस, जो टैक्सेस को कलेक्ट करके गवर्नमेंट की जो इनकम है दैट इज आल्सो स्पेंड ऑन दिस। और हमें सिर्फ घर पे बैठ के लगता है हर साल जो गवर्नमेंट है हमसे टैक्स ले लेती है, हमारी मनी का काफी बड़ा जो पोर्शन है वो टैक्स में चले जाता है। पर आप ये भी देखो तो गवर्नमेंट स्पेंड दैट मनी फॉर आवर वेलफेयर। ठीक है। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। लेटेस्ट एग्जांपल कोविड-19, लास्ट ईयर आपने देखा होगा, आपके नेबरहुड में नेबर्स में आए होंगे जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, so they distribute that grocery, कहीं पे वीट उन्होंने दिया, पल्सेस दी, तो दोस्त हु कांट अफोर्ड तो उनको फ्री फूड भी दिया गया, उनको ये पैकेट्स बना के दिए गए। तो गवर्नमेंट मेक सच एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ मनी वी पे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब ये दिमाग में हमारे कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत है एंड दैट मनी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड ऑन ओनली ऑन अस। हमारे ही वेलफेयर के लिए वो मनी स्पेंड हो रही है, हमारे ही, चाहे वो आप साइंस के फील्ड में ले लो, चाहे सोशल फील्ड में ले लो, एजुकेशन के फील्ड में ले लो, वेलफेयर प्रोग्राम्स में ले लो, इन रिटर्न वो पैसा हमारे ही वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पे टैक्सेस। So till here, if anyone is having any doubt, you can raise hand. So as I told you कि जो गवर्नमेंट जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं that are meant for all people and government try to give these services to all the people either free of cost or at a very low cost, and government time to time take actions to prevent the spread of diseases like TB, malaria, jaundice, cholera, etc. Now here we are going to recall the case of हाकिम शेख, जो हमने हाकिम शेख के लास्ट में पढ़ा था कि जो हाकिम शेख है और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन थी दे फाइल्ड द केस। ठीक है। तो उन्होंने केस फाइल किया था बिकॉज ही डिडंट गेट द ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला था क्योंकि कुछ किसी हॉस्पिटल में स्पेयर बेड नहीं था, किसी हॉस्पिटल में, वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं थे। तो व्हाट वुड हैपन, उसके बाद क्या हुआ? तो अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू दिस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी, जो हमारा जो प्राइमरी ड्यूटी है ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें सभी लोगों का जो गवर्नमेंट एंश्योर करती है कि सभी लोगों का भला हो, वेलफेयर हो, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है लोगों की भलाई के लिए काम करे और इंश्योर करे कि उनको सभी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड, सेफगार्ड मीन्स प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, मतलब हर एक को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और
उस टाइम पे अगर हाकिम शेख को प्राइवेट हॉस्पिटल में ना ले जाया जाता तो हो सकता है कि माइट बी डेड। ठीक है, तो the court said the difficulty that the Hakim Sheikh had faced could have cost him his life. अगर उसको immediate treatment नहीं मिलता, हो सकता है वो उसकी जान भी जा सकती थी, तो या उसको कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम राइट टू लाइफ के साथ हम ऐसा कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। So it means we need to protect the life of the people. अब उस केस पे गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन दिया, द कोर्ट ने डिसीजन दिया। द कोर्ट क्या कहा, फर्स्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, उनके पास स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, so they should ensure to fulfill all these duties. They can't refuse. बट जब हमने हाकिम शेख का केस पढ़ा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसका केस देने को मना कर दिया, डिनाइड द ट्रीटमेंट, है ना, क्योंकि फर्स्ट हॉस्पिटल में उनके पास स्पेयर बेड नहीं था, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे। सो इन द केस ऑफ हाकिम शेख द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे डिनाइड द ट्रीटमेंट, दे रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। तो कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया कि अब जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट give him the money that he had spent on his treatment, क्योंकि उसने अपना ट्रीटमेंट कहाँ पे करवाया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में, that cost him a lot. Now it's the responsibility of the state government to give that money back. ठीक है, अब कोर्ट ने ये कहा कि जो भी उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा आया है उस सारी की सारी मनी कौन वापस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ट्रीटमेंट होना, फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को मीट कर सके।